Let us start our today's topic, which is anatomical terminologies. The terminology itself, divided into subtopics, which is the first topic is position. The anatomical terminologies using for positions is the number one anatomical position. Now, this is the normal position of a human body, but there are some certain rules in which the body should be standing. Which is anatomical position has some characteristic, which is like person standing straight, his or her hand facing forward, and his or her eye looking forward, both the feet together. Right, this is anatomical position. Now we'll move to the second position, which is supine position. Supine position is a position where the person is, sleeping. The sleeping position, the upright. The person is sleeping on his or her back, and his eyes looking straight. His both thumb great toe, which is the thumb is upright. This is a supine position. इसका reciprocate में आती है prone position. Prone position में the person is lying on his face, abdomen, and the body is lying. Her anterior surface is lying downwards. अब उसके जो हाथ है वो कैसे होंगे? उल्टे. यहाँ पे विधि चौथे से हमें यहाँ पे गड़बड़ दी है. दोनों पोजीशन में जब हमने यहाँ पे सुपाइन और प्रोन देखी, तो प्रोन में दोनों हैंड के जो पाम है वो अपराइट होंगे. यहाँ पे उसका जो पाम है वो प्रोन में जो दिया वो सुपाइन में आएगा, जो सुपाइन में दिया वो प्रोन में आएगा. तो दोनों के पाम यहाँ पे डायग्राम में देख लेना, जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको करेक्ट कर देना वहाँ पे. The third is prone position, which we have already covered. The fourth position is lithotomic position. In that position is mostly into delivery position, what we call. The person is lying on his back, her back, and her legs up, which is like the supported by straps. Straps मतलब अभी जो anatomical lithotomic position होती है डिलीवरी की, उसमें क्या होता है कि एक फीमेल है उसको ऐसे लिटा के रखा है, उसके हाफ बॉडी ऐसे, उसके पैर दोनों ऐसे ही बांध के रखे ऊपर. This is a lithotomic position. Generally seen in the delivery of child. Now move to the anatomical terminology का second part, which is plane. Plane का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे अगर हमें बॉडी को डाइसेक्ट करना है या तो हमको उसके पार्ट्स का नाम देना है, तो हमको उसको प्लेन में नाम देना पड़ेगा. Which is like the part where the cut is going, in which the cut is going, in which direction is known as plane. Plane के mainly चार टाइप है: mid sagittal plane, coronal plane, and horizontal plane. But there are two accessory planes also, which is oblique and cardinal. ये दोनों इतने important है नहीं, but फिर भी हमको चौरसिया में दिया है तो we study that. The first one is the mid sagittal plane, which is the normal plane. If the person is standing in an anatomical position, then this the mid cut what will do. अगर हमको बीच में से इससे करना है तो राइट पूरा उसका राइट फेस, राइट हैंड, राइट लेग, एक पार्ट में आएगा राइट, लेफ्ट फेस, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, ये पूरा एक पार्ट में आएगा. दिस इज नोन एज मिड sagittal plane. लाइकवाइज द sagittal plane, अगर हमने अभी देखा कि एक बॉडी है, उसको अगर हमने ये मिड sagittal plane देखा, sagittal क्या होगा? या तो मिड sagittal के राइट में या तो लेफ्ट में. तो बॉडी अनइक्वल डिवीजन होगी. तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि मिड sagittal हम जब करेंगे तो बॉडी के दो इक्वल हिस्से होंगे, राइट पूरा और लेफ्ट. बट sagittal में क्या होगा कि बॉडी का इक्वल हिस्सा नहीं हो पाएगा. तो थर्ड वन इज coronal plane. अब हमने जो मिड sagittal वाला जो देखा था, which is basically the सेंटर पार्ट में से कट जो लगा उसके 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे हम लोग अगर कट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे coronal plane. और इसमें बॉडी कैसे डिवाइड होगी कि उसका अपर पार्ट आएगा जिसमें उसके अपर लिम्ब, फेस और हेड आएगा, नीचे वाले में उसके लोअर लिम्ब और ट्रंक एरिया का थोड़ा सा आएगा. इसको हम लोग बोलेंगे coronal plane. अब द फोर्थ वन इज horizontal plane, which is also known as transverse plane. इसके अंदर क्या होगा कि जो हमने मिड sagittal plane दिया था और ये हमने coronal दिया था, इन दोनों के 90 डिग्री पे जाएगा. अब मिड sagittal के 90 डिग्री पे क्या आएगा? ये वाला प्लेन, और coronal उसके इसमें आएगा. तो ये अगर हमने ना ये बॉडी है, इसको हमने यहाँ से ऐसे कट किया, फिर यूँ किया, यूँ करके ऐसे किया, तो ऐसा डायमंड शेप हमको बुक में दिया है इसका फिगर, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लेन. नाउ द फोर्थ वन, व्हिच इज ऑब्लिक प्लेन. ऑब्लिक प्लेन इज द वन जो हम लोग ने तीन अभी जो चार देखे उसके अलावा कोई भी तरह से हमने प्लेन में कट किया तो वो आएगा ऑब्लिक प्लेन. अभी हमने ये बॉडी देखी थी, ये मिड sagittal प्लेन है, ये sagittal प्लेन है, ये कोरोनल प्लेन है, और इसके अलावा यहाँ से दोनों तरफ से 90 डिग्री हुआ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन. तो इसके अलावा जैसे मैंने ऐसे कट कर दिया, ये ऑब्लिक हो गया, ऐसे कट किया तो ये ऑब्लिक हो गया. तो ये जो भी अगर इन चारों के अलावा कुछ होगा तो वो ऑब्लिक होगा. अब ये नेक्स्ट हमारा क्या है? कार्डिनल प्लेन. कार्डिनल प्लेन क्या होता है कि है ना जो सेंटर ऑफ बॉडी है, व्हिच इज लाइक दिस इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, उसमें हमारा हार्ट आता है. अगर जो प्लेन यहाँ से पास हो रहा है, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, ये सब ना ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होगा? कार्डिनल प्लेन होगा. इसको मोटा-मोटा हम लोग कार्डिनल प्लेन बोलते हैं. पर अगर हम लोग इसको डिवाइड करने लगेंगे तो उसके अलग-अलग फिर नाम हो जाएंगे. Now we'll move to the terminology, which is basic terminology. The ventral. First terminology is ventral or anterior. Now this is the what we call a body. इसके आगे की साइड इसका फेस, हैंड्स वगैरह का जो आगे की सरफेस है, फ्रंट ऑफ द बॉडी. इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग, उसकी आंखें, उसकी नोज, ये सब उसके वेंट्रल है, एंटीरियर सरफेस पे. बट स्पाइन, स्पाइन क्या होती है? हमारी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वहां पे स्पाइन होती है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी. वो हमारी क्या है? पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर डॉर्सल. तो जो बैक में होगा वो हमारा क्या होगा? पोस्टीरियर या डॉर्सल. अब हम जब आगे पढ़ेंगे स्कैपुला, वहां पे डॉर्सल और वेंट्रल यूज किया, तो वहां पे हमको वेंट्रल और डॉर्सल पढ़ना. पर अगर हम लोग स्कैपुला को छोड़ के इनका क्लैरिफाई करेंगे, वॉल्यूम 1 में ये सब आएगी बोल, उसमें हमको एंटीरियर पोस्टीरियर, जहां पे जो टर्मिनोलॉजीज दी हमको वही टर्मिनोलॉजी यूज करनी है. तो सेकंड वन इज सुपीरियर. अभी सुपीरियर में क्या होता है कि अगर मैंने एक बॉडी बनाई है, लाइक इट इज अ रिलेटिव टर्मिनोलॉजी. ये सुपीरियर एक बॉडी है. अभी जैसे मेरे को ये इमेज लाइन है इसके ऊपर, अभी मेरे को ऐसा मैंने बोला कि नोज एंड लाइक, तो इन दोनों में से सुपीरियर कौन होगा? जो ऊपर होगा, ऊपर की साइड. तो नोज इज सुपीरियर एंड लाइक इज इंफीरियर. बट अगर मैंने बोला नोज और ब्रेन में से सुपीरियर कौन है? नोज यहाँ पे, ब्रेन यहाँ पे. इन दोनों में से सुपीरियर कौन होगा? ब्रेन हो गया, और इंफीरियर क्या होगा? नोज हो गया. समझ में आई? दोनों क्या है? मिले हुए टर्म है. अब नेक्स्ट इज मीडियल. मीडियल का मतलब क्या होता है? ये हमारी बॉडी है, ये उसकी मिड लाइन है जहाँ से हमने हमें सैलरी प्लेन पास किया था. तो बॉडी के अंदर वो ऑर्गन्स जो मीडियल लाइन, ये मिड लाइन की तरफ है, जैसे कि ये हमारी बड़ी मैं तुमको स्ट्रक्चर यहाँ पे हार्ट है, ये है, और यहाँ पे इसका हैंड होगा, तो ये हार्ट क्या है? मीडियल है. जबकि ये दोनों के कंपेयर में ये भी कंपेरेटिव है, मीडियल और लेटरल. तो हार्ट जो है वो मीडियल है और उसका जो पाम है वो लेटरल है. अब इसी तरह से अगर हम लोग देखने जाए तो फिंगर्स, हमने ये मिड लाइन बताई, ये यहाँ पे पाम है, उसका ये थंब होगा, तो ये थंब क्या हुआ? ये साइड हुआ, उसकी लिटिल फिंगर ये साइड होगी, उसकी लिटिल फिंगर क्या होगी? मीडियल होगी, उसका थंब क्या होगा? लेटरल होगा. इसी तरह से अब सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है? इप्सिलेटरल. इप्सिलेटरल, इप्सिलेटरल का मतलब क्या है कि अगर ये बॉडी है तो इसी का राइट हैंड और इसी का लेफ्ट हैंड, या तो इधर का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे लिम्ब है तो अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, पर एक ही साइड का, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, इसको बोलेंगे इप्सिलेटरल. पर अगर मैंने ऐसा बोला कि मेरे को लेफ्ट हैंड चाहिए और राइट लेग चाहिए, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर तो है, पर क्या हुआ? अपोजिट साइड का, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रालेटरल. इजी राइट. तो अब सेकंड अपना और क्या है? इमेजिनेशन एंड इन्वेजिनेशन. अब ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कुछ गया तो ये इन हुआ, इन, तो इसको बोलेंगे इन्वेजिनेशन. अब बॉडी ने कुछ बाहर निकाला, इसको बोलेंगे आउट. आउट से मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन. समझ में आ गया? अब अपना लास्ट क्या है कि अभी जैसे ये मेरा पाम है, तो पाम के ऊपर की सरफेस जो आगे की थिक साइड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाम बोलते हैं आगे की साइड को. और उसके पीछे का हिस्सा जहाँ पे हम हमारा क्या बोलते हैं? मेटाकार्पस वगैरह जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन में पीछे की साइड होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉर्सल. डॉर्सल बोलेंगे कि अभी ऊपर मैंने बताया जो पीछे है वो डॉर्सल. पर अगर फुट की हम बात करें तो उसका डॉर्सल तो कुछ होता ही नहीं है. फुट का पोजीशन देखा ना कैसा होता है? तो उसमें जो नीचे का तलिया है, जो हम लोग शूज वगैरह में जिसको कवर करने के लिए शूज पहनते चलते हैं, तो उसको जो बोलते हैं वो पूरा हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे? प्लांटर. प्लांटर का मतलब क्या होता है? सोल ऑफ द फुट. फुट के नीचे वाला हिस्सा जो सोल है
मूव टर्म्स यूज्ड फॉर बॉडी मूवमेंट। नंबर 1 इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर ना मैं वापस से डायग्राम बनाऊं, ये बॉडी है, इसका अगर मैं इसका फ्लेक्शन करना, फ्लेक्शन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? दो बोन बनेंगे, उसके बीच का जो जॉइंट होगा, जैसे शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, वहां पे कुछ मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स यूज्ड फॉर बॉडी मूवमेंट। सबसे पहला टर्म क्या है? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में अभी मेरे को शोल्डर और अपने मेरे को एल्बो जॉइंट करना है। एल्बो जॉइंट क्या होता है? ये आर्म है, ये एल्बो जॉइंट है, ये फोर आर्म है और ये उसका पाम। तो ये दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये अभी कितना है? 180 डिग्री। और अगर मैंने इसको 180 डिग्री से कम किया, मतलब कि मैंने इसको ऐसे मूवमेंट किया, बराबर? मैंने उसका जो फोर आर्म है वो आर्म की तरफ मूव किया, उसको ऊपर की तरफ मूव किया, तो इसका बीच का एंगल डिक्रीज होगा। अब एंगल डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। एंगल बिटवीन बोन्स डिक्रीजेस। इसी तरह से जब हम लोग एक्सटेंशन की बात करेंगे, तो ये फोर आर्म है, ये आर्म है, ये उसका एल्बो जॉइंट है, ये उसका फोर आर्म है, ये उसका पाम। अब इसी हाथ को मैंने क्या किया? ऐसा पीछे की तरफ मूव किया, उसका एल्बो जॉइंट जो उसका एंगल क्या बढ़ जाएगा? 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो जब एंगल इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन बोलेंगे। अब इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया था कि ये मीडियल लाइन है, इसके इधर से लेटरल होगा, इससे दूर जाएंगे तो लेटरल, इसकी तरफ आए तो मीडियल। तो अगर है ना ये बॉडी में मैंने ये राइट हैंड को मीडियल की तरफ मूव किया तो इसको बोलेंगे मीडियल फ्लेक्शन। अगर इसी को मैंने उल्टी तरफ मूव किया तो इसको बोलेंगे लेटरल मूवमेंट। इसी तरह से अब अगर मैंने अपने पैर को दिस इज द ह्यूमन बॉडी, इस पैर को ये ऐसे स्ट्रेट होकर दोनों पैर, तो इसको अंदर लेना है, समझ में आ रहा है? दोनों फुट को अंदर की तरफ ऐसे मूव किया तो इसको क्या बोलेंगे? देखो टुवर्ड्स द मिड लाइन। तो ये मिड लाइन अभी मैंने बताई थी, इसके अंदर मैंने पैर मूव किया तो इसको हम लोग ने क्या बोला? एडक्शन। एडक्शन में ऐड आता है, ऐड का मतलब किसी चीज को ऐड करना, किसी याद रखना, ऐड करने का मतलब पता मिला देना, मिलाने के लिए अंदर आना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको क्या किया? अंदर मूवमेंट की तो एडक्शन। अगर मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये उसकी मिड लाइन, मैंने पैर दोनों को ऐसे करने की कोशिश की तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबडक्शन। एबडक्शन देख लो, एडक्शन और एबडक्शन, समझ में आया? उसके बाद सबसे पहले हमारा क्या? प्रोनेशन। प्रोनेशन क्या होता है? ये एल्बो जॉइंट का होता है, प्रोनेशन सुपाइनेशन। अभी हमने पीछे प्रोन पोजीशन सुपाइन पोजीशन पढ़ी थी, वो अलग है, और प्रोनेशन सुपाइनेशन अलग है। ये दोनों कहां होता है? एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का भी ये मेरा आर्म है, ये मेरा फोर आर्म है, ये एल्बो जॉइंट है, ये रिस्ट जॉइंट है और यहाँ पे पाम। अब यहाँ पे होगा सुपाइनेशन और प्रोनेशन, जो भी मेरे को करना है वो यहाँ पे होगा। तो इधर करने के लिए क्या होगा? अभी देखो मैंने ये हाथ को क्या रखा, ये अगर मैं ऐसे स्ट्रेट मान रही हूँ कि ये एल्बो जॉइंट है, ये फोर आर्म है, ये पाम, तो अभी मुझे जब ये पोजीशन पढ़नी है ना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये मेरा आर्म है, ये शोल्डर जॉइंट है, ये मेरा एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट से क्या है? ये फोर आर्म, मेरे को ऐसे 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा, तभी उसको बोलते हैं मिक्स्ड मिड फ्लेक्स्ड एल्बो। मीडियल हमने थोड़ा, मिड मतलब मीडियम है, यहाँ पे मीडियम मतलब ना ज्यादा ना कम, मतलब किया है पर पूरा नहीं किया। फ्लेक्स मतलब फ्लेक्शन की मूवमेंट किसकी? एल्बो की, इसका नाम क्या? मिड फ्लेक्स्ड एल्बो। इसका मतलब होता है कि आर्म और फोर आर्म के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब एंगल बन गया तो अगर मैंने मेरे पाम को नीचे की तरफ रखा, डाउनवर्ड साइड, मेरे फुट की तरफ मेरा पाम क्या होता है? आगे वाला हिस्सा वो नीचे की तरफ है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमको ब्लेसिंग देते हैं, उनका हाथ ऐसे ऊपर से हमारे पाम नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं प्रोनेशन। पर अगर है ना जो बैगर्स होते हैं, जो भीख मांगते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? उनका हाथ, उनका पाम अपवर्ड ऊपर की तरफ होता है। तो अगर पाम अपवर्ड हुआ तो सुपाइनेशन, पाम डाउनवर्ड हुआ तो प्रोनेशन, समझ में आया? अब सबसे मेन देखिए जो सिर्फ थंब में अभी हमने पढ़ना है वो है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन क्या होता है? पहले हम लोग किसी चीज का फ्लेक्शन करेंगे, फिर उसका एडक्शन, फिर उसका एक्सटेंशन करेंगे, फिर उसका एडक्शन करेंगे, फिर उसका एबडक्शन करेंगे। ये सारी मूवमेंट जो हम लोग पढ़ी ना, ये चारों चार जो मेन मूवमेंट थी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ये सबको एक साथ करना है। जैसे कि थंब, अब थंब हमारा फ्लेक्शन भी कर सकता है, एक्सटेंशन भी कर सकता है, एडक्शन भी कर सकता है, एबडक्शन भी कर सकता है। तो ये सबको एक सीरीज में करना, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमडक्शन। नाउ विल मूव टू द टर्म यूज्ड फॉर मसल। अब ऊपर के जो दो दिख रहे हैं, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जब इसका हम लोग पढ़ेंगे स्कल में तब मैं इसको समझाऊंगी, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं, जिस टर्म यूज्ड फॉर मसल। मसल का पूरा चैप्टर आगे आने वाला है, बट बेसिकली हमको मसल के जो नाम दिए, जैसे ये मसल है तो इसके इस एंड का क्या नाम है, इस एंड का नाम क्या है, उसको पढ़ने के लिए हमको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिखना पड़ेगा। अब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब एक मसल, उसके दो एंड हो सकते हैं, तो ये अगर ओरिजिन है तो ये क्या होगा? इंसर्शन। अगर ये ओरिजिन है तो इंसर्शन होगा, मतलब ये हम क्या कर सकते हैं? इंटरचेंजेबल है, ओरिजिन और इंसर्शन आपस में इंटरचेंजेबल है। अगर एक एंड को ओरिजिन बोला तो दूसरे को इंसर्शन बोलेंगे। अब ओरिजिन हम कब बोलेंगे? वो एंड, मसल का वो एंड जो क्या करता है? फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब अब हम एक बोन है, उसके ऊपर एक मसल है, मसल को हमने बोन पे रखा है क्यों? ताकि हमारा मसल क्या कर पाए? मूवमेंट या कंट्रैक्शन करे तो हमारी मूवमेंट हो पाए। तो जो एंड मसल का फिक्स रहेगा उसको ओरिजिन बोलेंगे, जो मसल का कंट्रैक्शन करेगा, जो कंट्रैक्शन में फिक्स नहीं रहेगा, मूव करेगा, उसको इंसर्शन बोलेंगे। अब सेकंड पार्ट इज बेली। अब दिस इज द मसल, ये उसका ओरिजिन है तो ये एक्सटेंशन है, ये ओरिजिन है तो ये एक्सटेंशन है। अब ये दोनों के बीच में जो हिस्सा है ये, इसको बोलेंगे बेली। अब बेली जो है ना वो मसल का ओरिजिन ऐसा होता है, तो ये पूरा हिस्सा ऊपर वाला क्या है? बेली है, ये उसका ओरिजिन हुआ तो ये एक्सटेंशन होगा। पर अगर मैंने ऐसा बोला कि ये ओरिजिन है तो ये एक्सटेंशन होगा, समझ में आ गया? अब सेकंड हमारा क्या है? टेंडन। टेंडन क्या होता है? मसल में, ये मैंने अभी बताया कि ये बोन है, इसके ऊपर ये उसका मसल है, इसके ऊपर ये बेली है, ये एंड है, ये एंड है। अब इसके बाद से ना किसी व्हाइटिश कलर की लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। ये दोनों तरफ ऐसी थिन फ्लैशी फाइब्रस होती है, फाइब्रस होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। वो मसल जब मूवमेंट करेगा तो ये भी मूव नहीं करेगी, कॉर्ड लाइक होती है, कॉर्ड लाइक समझते हो? डोरी रस्सी जैसे, इसको टेंडन बोलते हैं। एपोन्यूरोसिस, ये क्या कंडीशन है? अगर टेंडन जो है वो कॉर्ड से, कॉर्ड मतलब समझते हो? कॉर्ड ऐसी होती है, हम जो रस्सी जिस पे कपड़े सुखाते हैं ना उसको देखना, वो गोल ऐसी है पर वो सिलिंड्रिकल ही है, और उसका सरफेस क्या है? गोल है, गोल है। पर अगर वो सरफेस फ्लैट हो गया, फ्लैट ऐसा एक ही हिस्सा फ्लैट है, 2D में है, तो वो क्या हो जाएगा? एपोन्यूरोसिस उसको कंडीशन को बोलेंगे। जब हमको दो जॉइंट को जॉइन करना है, ये एक मसल है, ये एक मसल है, ये मसल के क्या है? दो मसल की हिस्से, ये दोनों से मिलकर एक जॉइन करेगा। जॉइंट के ये हिस्सा एक यहाँ का, एक यहाँ का, ये एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? यहाँ से, यहाँ पे लिगामेंट है, यहाँ लिगामेंट है, यहाँ लिगामेंट है, जहाँ दो मिलके क्या हुआ है? जॉइंट हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि वेसल्स। वेसल्स में हम लोग सबसे पहले ब्लड वेसल देखेंगे। ब्लड वेसल होती है, उसमें तीन चीजें हो सकती है, या तो आर्टरी हो सकती है, या तो वेन्स हो सकती है, या तो फिर है ना कैपिलरीज हो सकती है। अब आर्टरी क्या होती है? वो आर्टरी जो वेसल है वो कौन सा ब्लड लेके आती है? जनरली O2 ब्लड लाती है और हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाती है। अब अगर ये मैं आर्टरी की बात बोलूं, अगर O2 ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है तो इसका एक्सेप्शन है, दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हम सबके अंदर भी है, पर अम्बिलिकल आर्टरी हम कहां देखेंगे? जब एम्ब्रियो की बात हो रही है, व्हेन मदर और द फीमेल इज प्रेग्नेंट, वहां पे जो अम्बिलिकल आर्टरी होगी वो क्या करती है? आर्टरीज का जो मेन काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना, उसके ऑपोजिट में काम करती है, वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। अब ये आर्टरी जो है वो कैसी होती है बताओ? ये आर्टरी है, अभी आगे जा जाके आर्टरियोल्स वगैरह में कन्वर्ट होगी। ये कैसा रिजेंबल करती है? ट्री के जैसा। एक ट्री होता है उसका भी ऐसे ही होता है ना, ब्रांच वगैरह जो, उसको आर्टरी का भी ऐसे ही। अब यहाँ पे वेन्स के पास अभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड आती है, तो वेन्स क्या लाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। अब वो अवे लेके जाती है हार्ट से, ये हार्ट के पास लेके आएगी। ये हार्ट ऐसा बनाना है तो गलत है। अब हम लोग हार्ट कैसा बनाते हैं? ये ऐसा होता है, ये 2D में ऐसा ही बनता है, पर अभी हमारा हार्ट ऐसा है। अब यहाँ से अगर एक ब्लड वेसल जा रही है, एक ब्लड वेसल आ रही है, तो अगर मैंने बोला कि यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो ये कौन सा पार्ट होगा? जो ब्लड को लेकर आता है हार्ट की तरफ वो वेन्स होती है, और जो ब्लड को लेकर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। तो ये आर्टरी हुई, ये वेन्स हुई, बराबर समझ में आ गया? अब एक और बात, अगर आर्टरी ट्री के जैसे दिखती है, जैसे आर्टरी वो आगे जाके अपने ट्री की जैसा क्या करेगी? डिवाइड होकर ब्रांच करेगी। जो वेन्स है वो कैसे दिखती है? रिवर्स करेगी। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक रिवर है, वो आगे जाके क्या करेगी? रिवर जब है ना, रिवर होती है, रिवर आगे जाके क्या करती है? लेक वगैरह में टूटती जाती है कि बनती जाती है? नहीं, रिवर में सब जगह से पानी आता है, रिवर किसी को पानी देती है। ये एक लेक है, ये एक लेक है, ऐसे करके सब जगह से पानी आएगा, एक जगह जमा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? रिवर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर वो ट्री की जैसे ब्रांचिंग करती है आर्टरी, वो ट्री को रिप्रेजेंट करती है, जो वेन्स है वो रिवर्स रिप्रेजेंट करती है। अब एक कंडीशन है, एक चीज है, अगर एक आर्टरी, मीडियम साइज आर्टरी, दो वेन आपस में आस-पास उसकी दो वेन और उसके बीच में कनेक्शन है, वो तीनों के बीच में, तो ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? वेनस कॉम्बिनेंट, वेना कॉम्बिनेंट। समझ में आ गया?
which is like other. मैंने बोला था आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, कैपिलरी। कैपिलरी का मतलब क्या होता है कि ये आर्टरी है, ये वेन, इन दोनों के बीच में जो ऐसा स्ट्रक्चर एक बनेगा ना, कहीं तो जाके मिलती होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी। जंक्शन बिटवीन टू आर्टरी, जंक्शन बिटवीन आर्टरीओल्स एंड वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या है, वेन्यूल से शुरू होता है और वो दो बहुत सारी वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाती है, वेन बनाती है। पर आर्टरी में उल्टा है, एक आर्टरी बहुत सारी आर्टरीओल्स में डिवाइड होती है, तो ये वेन्यूल्स जहाँ से वेन बनी और एक आर्टरी जहाँ से आर्टरीओल बने, तो ये जो वेन्यूल्स है और आर्टरीओल्स है, ये दोनों के बीच में जो जंक्शन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी। अब एक और चीज हमारे पास नहीं है, साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स का कोई भी बॉडी में एक स्पेस जो ऑर्गन के अंदर है, पर वहाँ पे क्या है, वो स्पेस खाली है। जैसे कि एल्वियोल है, यहाँ पे उसका सब सेल्स वगैरह आ गया, पर ये जगह खाली है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन वगैरह हो, तो ये जो जगह है बीच में उसको क्या बोलेंगे, साइनोइड। साइनोसॉइड्स का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गन के बीच में जगह जो खाली है, वो किससे बनी होती है, पेरेन्काइमा से बनी होती है, लार्ज होती है और वास्कुलर स्पेस। वास्कुलर स्पेस तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, समझ में आया, जैसे कि लीवर में है, स्प्लीन में। अब एक और चीज हमारे पास है, एनास्टोम्स। एनास्टोम्स हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ देखो। एक कैपिलरी जब शुरू हुई, कैपिलरी क्या था, इधर उसकी क्या थी, आर्टरी थी, वेन्यूल से, इधर उसके क्या थे, आर्टरीओल्स। बीच का जो जंक्शन था वो क्या था, कैपिलरी। अब अगर कैपिलरी यहाँ से शुरू हो रही है, प्री कैपिलरी से पहले, प्रीवियस ऑफ कैपिलरी, इसको क्या बोलते हैं, प्री कैपिलरी। पोस्ट कैपिलरी मतलब कैपिलरी खत्म हो रही है, वो जगह को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट कैपिलरी। इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होगा, प्री और पोस्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। बातचीत में क्या करती है लोग, अब जब ब्लड वगैरह ट्रांसफर करना है, आर्टरी में से ब्लड आया, वेन्स में जाएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन होना जरूरी है, तो उस कम्युनिकेशन में जो पास के वेसल के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनास्टोम्स।